Well, dear students, this is the fifth chapter, fifth lecture on the series of special functions. In this lecture, we will be dealing with the recurrence formula for Jnx and Jn-x, the derivative of Jnx. We are having the six recurrence formulas for this. The first one is derivative of x to the power n Jn x. It's equal to x to the power n Jn minus 1x. इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी इसको जहन में रख सकते हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, एज यू नो, जे एन डेरिवेटिव का क्या होता है, डेरिवेटिव एक पावर कम करता है. आप देख लीजिए यहाँ पर जे एन एक्स, यहाँ पर बनता है जे एन माइनस 1x. सो अगर आपके पास है एक्स टू द पावर एन, वो ऐसे ही रहता है. जो जे एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता है यहाँ पर याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं, इसका एन की जगह पर एन माइनस 1 आता है. और यहाँ पर दूसरा जो आपके पास प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर माइनस इन जे एन एक्स. यहाँ पर जो माइनस पावर है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इस जे एन एक्स को इंटीग्रेशन होता है. इंटीग्रेशन में क्या होता है, एन का पावर ऐड हो जाता है, एक एन प्लस 1 आ जाता है. सो एन की जगह पर यहाँ पर एन प्लस 1 आ गया. सो अगर आप ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे तो फिर हमें इजिली ये जो बाकी चार प्रॉपर्टीज है इनसे हम इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं इन पहले दो प्रॉपर्टीज से. So here we'll be proving the first property, then we'll prove second property, and after that we'll deduce all the rest of the four properties. ठीक है ना. अब देख लीजिए first property जो हमारे पास है. What is the first property? First property states that the derivative of x to the power n j n x, that is means first property जो हमारे पास है, that is d by dx of x to the power n j n x is equal to x to the power n ऐसे ही रहता है, यहां पर j की जगह पर आता है j n minus 1x. इसका जो प्रूफ है, प्रूफ में हम सबसे पहले jn x की जो फॉर्मूला हमारे पास है वो इस्तेमाल करेंगे. देख लीजिए, वी नो जो ये jn x है, यू नो दिस इज एक्चुअली द बेसल फंक्शन. दिस द सॉल्यूशन ऑफ Bessel's differential equation. This is the solution rather of first kind. So we know jn x जो आपके पास है, ये jn x किसके बराबर होता है, समेशन k runs from 0 to infinity, then you are having minus 1 raised power k into x by 2 raised power n plus 2k whole divided by k factorial into gamma of n plus k plus 1. This is the whole value of jn x. अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x to the power n jnx. We will use this formula for jnx here. जिन्होंने ये फार्मूला नहीं देखी है, we have discussed this formula in the previous parts. वो previous parts देख सकते हैं, फिर उनको अच्छे से ध्यान में आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस कैसे इसके बराबर है. So now I will take the left hand side. Now we can have d by dx of x to the power n jnx. ये किसके बराबर होगा, it will be simply d by dx of x to the power n. What is jnx? Jnx is this quantity, that is summation k runs from 0 to infinity minus 1 to the power k into x by 2 whole raised for n plus 2k whole divided by k factorial into gamma of n plus k plus 1. So this is the whole value of jnx. Now what I can do, I can take this x raised power n inside the summation, because summation runs on k, so it is independent whether I will take x raised power n inside the summation or I will take it outside. So I can write down it in the form is equal to summation k runs from 0 to infinity minus 1 raised power k whole divided by k factorial into gamma of n plus k plus 1. अब देखिए वहां पर क्या बचता है, एक तो हमारे पास ये x by 2 raised power n plus 2k है. इसमें 2 का जो पार्ट है अलग से लिखता हूं नीचे, इट इज 2 raised power
n प्लस टू के, और x का पावर क्या है n प्लस टू के। जब ये x इस x के साथ ज्वाइन करेंगे हम, बेस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, सो इट विल बी x रेज पावर 2n प्लस 2k, और हमारे पास इसी का डेरिवेटिव, बिकॉज डिफरेंशियल इज विद रिस्पेक्ट टू x, सो आई कैन राइट इट इज d by dx ऑफ x रेज पावर 2n प्लस 2k। नाउ इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कैसे, समेशन k runs from 0 to infinity minus 1 raised power k. What is the derivative of x raised power 2n plus 2k? It's power down, that's 2n plus 2k into power minus 1, that's x to the power 2n plus 2k minus 1 whole divided by k factorial into gamma of n plus k plus 1 into 2 to the power n plus 2k. अब देख लीजिए, on further simplification we can write summation k runs from 0 to infinity minus 1 raised power k। अब देख लीजिए, इस 2n और प्लस 2k में हम 2 कॉमन निकालते हैं, what will remain inside? Inside I will have n plus k, ओके। और क्या है आपके पास, x raised power 2n plus 2k minus 1 whole divided by k factorial into gamma of n plus k plus 1 into 2 raised power n plus 2k, और ऊपर जो हमारे पास जो 2 यहां पर कॉमन निकाला था, उसको अगर हम नीचे लाए, इस 2 के साथ कंबाइन कर ले, यहां पर आएगा वो -1, ओके। नाउ व्हाट कैन वी डू, वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट बाय राइटिंग दिस इज समेशन k runs from 0 to infinity। अब देख लीजिए, यहां पर -1 रेज्ड पावर k ऐसे ही है, राइट, उसके पास है n प्लस 1 n प्लस k, उसके बाद x का जो पावर है 2n प्लस 2k माइनस 1, ये पावर और ये पावर में सेम बनाना चाहूंगा, सो आई कैन टेक x रेज्ड पावर n आउटसाइड। वहां पर क्या रहेगा फिर, x का पावर रहेगा x रेज्ड पावर n प्लस 2k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास है k फैक्टोरियल, और फिर है gamma of n plus k plus 1, we use the property of gamma function, so it's n plus k gamma of n plus k into 2 raised power n plus 2k minus 1। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, बिकॉज gamma of n it's equal to n minus 1 gamma of n minus 1, वही प्रॉपर्टी यहां पर हमने इस्तेमाल की, मींस gamma of n plus k plus 1 असल में होगा n plus k plus 1 minus 1 gamma of n plus k plus 1 minus 1, so that is the result। So on further simplification, this can be written as, you can take this x raised power n outside, ये जो आपके पास यहाँ पर x raised power n है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, you can write down this x to the power n, then summation k runs from 0 to infinity minus 1 raised power k। अब देखिए यहाँ पर n plus k और n plus k कैंसिल होगा, राइट, फिर है x by 2 raised power it's n minus 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n minus 1 plus 2k, क्योंकि दोनों का पावर, इस x का पावर और इस 2 का पावर सेम है, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पर क्या है, गामा ऑफ n प्लस k, इसको मैं लिख सकता हूं गामा ऑफ n माइनस 1 प्लस k प्लस 1, ताकि ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, सो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देख लीजिए, हमें पता है जो आपके पास jn x वो किसके बराबर होता है, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर n। अब देख लीजिए, ये जो क्वांटिटी आपके पास है, जो हमारे पास ये वैल्यू निकला, अगर मैं यहाँ पर n माइनस 1 की जगह पर n लगा दूं, तभी jn x की फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर n नहीं है, इस वक्त n माइनस 1 है, तो फिर ये जो फॉर्मूला आपके पास बनेगी, ये बनेगी jn माइनस 1 x की फॉर्मूला। सो वी हैव प्रूव्ड, हेंस d by dx ऑफ किसका डेरिवेटिव, x to the power n jn x,
इसका डेरिवेटिव किसके बराबर अब निकला हमें, x to the power n j n minus 1 into x. दिस इज द रिजल्ट. सो ये याद रख लीजिए. अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास है इसका डेरिवेटिव, लेकिन x की जगह पर है x रेज पावर माइनस. नेक्स्ट we will prove the second property, that's derivative of x to the power minus n j n x is equal to minus x raised power n j n plus 1 x. जैसे मैंने अभी पहले ही बोला आपको, इसको याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए j का जब माइनस n पावर होता है, फिर अगर आप डेरिवेटिव करेंगे n के पावर को एक हेड होता है, जैसे इंटीग्रेशन के केस में होता है. और इसको भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी को प्रूव किया था. सो we have d by dx of x to the power minus n j n x. What is this equal to? This is equal to simply d by dx of x to the power n. What is this j n x? You know this is summation k runs from 0 to infinity minus 1 to the power k x by 2 whole raised power n plus 2k whole divided by k factorial gamma of n plus k plus 1. Now this is the value of this jnx. जैसे इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने ये यूज किया है, राइट. नाउ इसको हम सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस x रेज पावर n, जैसे हमने उसमें इस्तेमाल किया, इसको इस x के साथ ज्वाइन करेंगे और डेरिवेटिव भी लेंगे. सो वी कैन राइट डाउन दिस एज समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to infinity minus 1 raised power k whole divided by k factorial into gamma of n plus k plus 1 into x raised power into 2 raised power n plus 2k. और क्योंकि हमें डेरिवेटिव इसका चाहिए d by dx ऑफ, जब ये x रेज पावर n इसके साथ x रेज पावर माइनस n है यहाँ पर, इसके साथ ज्वाइन होगा, सो ये बनेगा x रेज्ड पावर 2k. नाउ further that can be simplified. We can simplify this by writing which is equal to summation k runs from 0 to infinity minus 1 to the power k. अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर डाउन पावर माइनस 1, इट्स ट्वाइस k x to the power 2k minus 1, and in the denominator for this k factorial I will write down it k into k minus 1 factorial. Then I will have gamma of n plus k plus 1 and 2 to the power n plus 2k. So this is what we obtain. अब देख लीजिए यहाँ पर जब मैं k, क्योंकि k runs from 0 to infinity, अगर मैं ये k और ये k आपको कैंसिल कर दूं आपस में, तब यहाँ पर बचेगा k minus 1 factorial. अगर मैं k का वैल्यू 0 डाल दूं, यहाँ पर बनेगा minus 1 factorial. That's not defined. So this k cannot run from 0 to infinity. So in this case, this k will run from 1 to infinity. So I can write down here summation k runs from 1 to infinity minus 1 to the power k x to the power 2k minus 1 whole divided by this k, and this k will go. This 2 will be combined into this 2, and I will have k minus 1 factorial, then gamma of n plus k plus 1 into 2 to the power n plus 2k minus 1. This is the quantity that I will have. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर x रेज्ड पावर n फिर मल्टीप्लाई भी करूंगा, माइनस n भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालने के लिए. उससे पहले यहाँ पर k रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल समेशन k minus 1 runs from 0 to infinity. Because if you subtract denominator में यहाँ पर k runs from 1 to infinity, subtracting both sides minus 1, so it's k minus 1 runs from 0 to infinity. So on the right hand side you will have minus 1 raised power k x to the power 2k minus 1
होल डिवाइडेड बाय k minus 1 factorial gamma of n plus k plus 1 into 2 to the power n plus 2k minus 1। अब देख लीजिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लेंगे, लेकिन उससे पहले इफ आई टेक लेट k minus 1 is equal to m, which implies k is equal to m plus 1। देयरफॉर जो हमारे पास ये जो क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स, ये किसके बराबर आएगा? इज इक्वल समेशन k minus 1 m के बराबर है, सो इट रन्स फ्रॉम m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1। k का वैल्यू क्या है? k का वैल्यू बनेगा m प्लस 1, सो इट्स m प्लस 1 इंटू एक्स रेज पर 2 इंटू k का वैल्यू है m प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय दिस k माइनस 1 की जगह पर आएगा m फैक्टोरियल, देन यू आर हैविंग गामा ऑफ n प्लस k की जगह पर आएगा k m प्लस 1 और प्लस 1 अपना है यहाँ पर, और 2 रेज पर n प्लस 2 k की जगह पर आएगा k प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे। देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको एक्स रेज पर माइनस एन और एक्स रेज पर एन ऐसे में लिख सकता हूँ, एक्स रेज पर माइनस एन और एक्स रेज पर एन। मैंने असल में एक्स रेज पर एन डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, सो इस एक्स रेज पर 0 से ये क्वांटिटी इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसमें मैं एक्स रेज पर एन बाहर निकालता हूँ, एक्स रेज पर माइनस एन बाहर निकालता हूँ, फिर समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए, माइनस 1 का पावर है m प्लस 1, माइनस 1 रेज पर m इंटू माइनस 1 रेज पर 1, एक माइनस में बाहर निकालता हूं, सो यहां पर वो रख देता हूं। अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा माइनस 1 रेज्ड पावर m, फिर x का पावर क्या आएगा यहाँ पर आएगा x रेज्ड पावर 2m प्लस 2 माइनस 1, और ये है x रेज्ड पावर n, सो इसके साथ ऐड होगा प्लस n होल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल gamma of it is n plus m plus 2 into 2 raised power n plus 2k plus 2 minus 1. Now this further simplified, in simplified form, this can be further written as minus x to the power minus n summation m runs from 0 to infinity minus 1 raised power m, then you will have x raised power, you can write here, it will be you can write down this as देख लीजिए, अगर आप x का पावर देखेंगे यहाँ पर 2m प्लस 2 माइनस 1 आएगा प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x रेज पावर n प्लस 1 प्लस 2m होल डिवाइडेड बाय, नीचे है m फैक्टोरियल गामा ऑफ, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे n प्लस 1, फिर आएगा प्लस m प्लस 1 इंटू x का पावर क्या है n, अगर आप ऊपर देखेंगे n प्लस 2 माइनस 1 आएगा 1, वही लिखेंगे n प्लस 1 प्लस 2k। अब देखिए, यहां पर भी x का जो पावर है वही ऊपर भी x का पावर, k नहीं सॉरी, यहाँ पर m था 2m, यहाँ पर असल में जब हमने m में लिखा इसको, यहाँ पर आएगा 2 इंटू m प्लस 1, m प्लस 1, यहाँ पर भी फिर बनेगा m प्लस 2, यहाँ पर 2m, फिर आएगा 2m, यहाँ पर है m। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर x का जो पावर है वो 2, यहाँ पर 2 है नीचे, 2 का जो पावर है, यहाँ पर 2 है, 2 का जो पावर है वही ऊपर x का पावर है, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स रेज्ड पावर माइनस एन, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज्ड पावर m x टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं n प्लस या x, टू इसको पावर कंबाइन करेंगे, सो आई कैन राइट डाउन हियर x बाई 2 होल रेज्ड पावर n plus 1 plus 2m whole divided by m factorial gamma n plus 1 plus m plus 1। So we will have, अगर आप देखेंगे यहाँ पर m plus k plus 1, अब देख लीजिए
इसको ब्रैकेट में रख देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देख लीजिए, अगर आप ये चीज देखेंगे, व्हाट इज दिस, अगर यहाँ पर m की जगह पर k होता तब ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर n की जगह पर है n+1। अगर ये n होता तब ये jnx था, क्योंकि n+1 है, ये बनेगा jn+1x। सो आपको ये क्या बन गया, सो यू विल हैव -x raised power -n jn+1x, क्योंकि समेशन k पर रन हो या m पर रन हो, के भी वही वैल्यूज आएंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ पर m के वैल्यू 0 1 2 3 4 आ रहा है। सो वी हैव प्रूव्ड, हेंस सो हमने देखा यहाँ पर क्या, d by dx of x to the power -n jnx, सो ये किसके बराबर आता है, -x raised to power -n jn+1 into x। so that proves the second property. Now in order to prove the third result, that is jn dash x is equal to -n by x jnx plus jn minus 1x। अब देख लीजिए, जो हमने पहला रिजल्ट प्रूव किया, मैंने बताया था पहले दो हमें का प्रूफ लंबा थोड़ा सा है, इनके बाद जो बाकी चार है ये हम डिड्यूस कर सकते हैं उन दो से। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट रेकरेंसलेशन वी हैव, वहां से क्या मिलता है हमें, इफ यू रिमेंबर, दैट इज d by dx of x to the power n jnx। कैसे बोला था मैंने याद रखने के लिए, ये आप x रेज पर n ऐसे रख लीजिए, और राइट हैंड साइड क्योंकि डिफरेंशिएशन पावर एक कम हो जाता है, सो n की जगह पर n-1 आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड से डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर ले, सो व्हाट आई विल हैव, सो प्रोडक्ट यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, वी हैव, क्या मिलेगा हमें अगर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर ले, तो इट इज सिंपली फर्स्ट फंक्शन दैट्स x to the power n jn dash x and jn dash x, और दिस इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट्स n x to the power n-1 jn x। well, this quantity is equal to x raised to power n j n-1 into x। now what we'll do, we'll divide both sides by x raised to power n, we get, so you can write down divide throughout by x to the power n, we get, क्या मिलेगा हमें, it's x to the power n x to the power n j n dash x divided by x raised to the power n, so it will be simply j n dash x प्लस, जब इसको डिवाइड होगा इट्स सिंपली n by x jn x इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा j n-1 into x। so or we can write down, or you can write down this as j n dash x, डेरिवेटिव इसका जो है दैट्स इक्वल टू माइनस n by x jn x plus j n-1 into x। so that proves third property, third रेकरेंसलेशन। जैसे हमारे पास थर्ड रेकरेंसलेशन फर्स्ट से हासिल होती है, in the similar lines we can have the fourth reconciliation from the second one। so you can write down, now this is the third reconciliation। what is third reconciliation, third reconciliation is jn dash x is equal to n by x jnx minus
jn plus 1 इंटू एक्स। अब देख लीजिए ये जो आपके पास रिजल्ट है इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए वी नो जो हमारे पास सेकंड रेक्रेंसलेशन है वो क्या कहती है, डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे एक्स रेज्ड पावर माइनस एन जे एन एक्स का, मैंने बताया था आपको क्योंकि एक्स रेज्ड पावर माइनस एन है, याद रख लीजिए इंटीग्रेशन जैसे हो रहा है, इंटीग्रेशन में क्या होता है माइनस एन जे का जो एन है दैट्स एन प्लस वन, एक्स और आगे माइनस है। Now what you will do, you will simply differentiate the left hand side by differentiation product. So using product rule of differentiation, product rule of differentiation, we have क्या मिलेगा आपको product rule of differentiation करके, so its first function x raised power minus n, differentiation of second function that is j n dash x plus second function or differentiation of first function that's minus n x raised power minus n minus 1 jnx, and on the right hand side you are having minus x raised power minus n jn plus 1 into x. Now here इससे पहले वाले केस में हमने डिवाइड किया था थ्रू आउट by x raised power n, here we will divide throughout by x raised power minus n. So divide throughout by x raised power minus n, we get क्या मिलेगा हमें, जब आप इसको x raised power वहां पर खाली jn डैश बच जाएगा, jn dash x, यहाँ पर x raised power minus n से डिवाइड करेंगे, what you will have, you will simply get n by x, यहाँ पर जब आप x raised power minus n से डिवाइड करेंगे so it's minus n, x raised power minus n से वहां पर नीचे आएगा वो बचेगा खाली x into jnx is equal to यहाँ पर बचेगा j n plus 1 into x. So if you simply take the derivative, what will be its derivative? It implies, और यहाँ पर ये माइनस है राइट, और what you will have j n dash x, इसको राइट साइड से लीजिए, इट्स n by x jn x minus jn plus 1 into x. That proves fourth property. That proves reconciliation 4. So 4 reconciliation आ गई हमारे पास. Now in order to prove the fifth reconciliation, what we will do, fifth क्या है हमारे पास, सबसे पहले fifth reconciliation, that is jn x is equal to x by twice n j n minus 1 into x plus j n plus 1 into x. आप देख लीजिए इसको प्रूव करने के लिए हम थर्ड और फोर्थ का इस्तेमाल करेंगे. फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, थर्ड जो है दैट इज j n dash x, what is this, it's minus n by x, it's equal to minus n by x jn x plus j n minus 1 into x, j n minus 1 into x, और दिस इज एक्चुअली द, इसको यहाँ पर मैं फिलहाल फर्स्ट रख लेता हूँ, और दूसरा जो है 4 से हमें जो मिलेगा व्हाट इज जे एन डैश एक्स, व्हाट इज दैट, दैट्स एन बाय एक्स जे एन एक्स, फिर माइनस जे एन प्लस 1 इंटू एक्स, इसको हम सेकेंड रख देते हैं यहाँ पर. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट द टू, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से जे एन डैश एक्स सब्ट्रैक्ट जब होगा इट इज 0, एंड इनको जब सब्ट्रैक्ट होगा ये आएगा 2 टाइम्स, सो ये बनेगा माइनस
twice n divided by x, jn x, और इनको जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले क्या आएगा आपको, प्लस जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन माइनस वन इंटू एक्स, फिर आगे यहाँ पर माइनस वन से प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा जे एन प्लस वन इंटू एक्स, राइट. So this can be further written as it implies jnx किसके बराबर आएगा, जब आप इसको लेफ्ट साइड से ले आएंगे jnx और फिर x ऊपर आएगा 2n नीचे आएगा, ये बनेगा फिर x by twice n, प्रोडक्ट फॉर्म में यहां पर आएगा j n minus 1 into x plus j n plus 1 into x. That proves fifth property. That proves a reconciliation 5. Now for sixth reconciliation what we will do, जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड है, इस केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ना विल ऐड, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, तो फिर वहां पर आपको सिक्स्थ रेकन्सिलिएशन मिलेगी. सो हम यहाँ पर रिमार्क में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आप खुद कर लेंगे, दैट्स एन असाइनमेंट फॉर यू. सो इफ वी ऐड third and fourth, we will get, simply दो लाइन्स का प्रूफ है, we will get jn dash x is equal to 1 by 2 jn minus 1 into x minus jn plus 1 into x, and that proves, that is reconciliation 6, right? So that completes this lecture, and in the next part we'll be dealing with the generating function of jnx. Thank you.